So let's start this event, which is online sync, and the topic for today is Wireshark 101. So our lecturer for today would be Sampath. So I'm going to invite Sampath now, and here you go. All the best, guys. With the business. So the topic for the day is Wireshark 101. So आप में से कितनों ने Wireshark के बारे में सुना था इस इवेंट से पहले? मतलब सुना था अगर पहले तो आप मैसेज कर सकते हो या फिर आप अनम्यूट करके बोल सकते हो. ओके ओके ग्रेट. मतलब को कुछ आइडिया देना चाहोगे कि क्या है Wireshark, किस लिए यूज होता है वो? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. लाइक ऑनलाइन ट्रैफिक से भी ज़्यादा नेटवर्क ट्रैफिक है. सो अभी हम लोग और इसके ऊपर डीप डाइव करेंगे एंड आई होप दैट everyone who is listening to this meetup, who is in this meetup, will gain some value out of it and will definitely get some things to flex about. If you are in college, then you will be getting something to flex about it in the college as well. So let's start with Wireshark 101. So Wireshark 101, packet capture and analysis. तो यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पैकेट कैप्चर एंड द सेकंड थिंग इज एनालिसिस. तो पैकेट्स क्या होता है, मतलब कि पैकेट्स जो होते हैं वो डेटा जब हम सेंड करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो वो पूरा ही नहीं जाता, उसको हम छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड फिर उसको हम सेंड कर रहे होते हैं. और वो जो पैकेट को सेंड किया जाता है उसको हम कैप्चर भी कर सकते हैं वायर शार्क को यूज़ करते हुए, एंड उसके बाद हम उस चीज़ को एनालाइज भी कर सकते हैं. तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट. So yeah, this is about me. My name is Sampath Adhikari. I'm a software engineer and researcher at Cyberforge Academy. And before that, I was also working at a Web3 education startup, which was Singapore based. And there I have worked for 6 months. Other than that, I'm a final year student at Lovely Professional University. And yeah, so I take a lot of interest in food, tech and cricket. तो इसके पहले एक्चुअली मैं मैच ही देख रहा था, इसीलिए थोड़ा सा मेरे को टाइम लग गया इवेंट में पहुंचने के लिए. मैं मैच का बहुत एनालिसिस कर रहा था, बट नेवर माइंड. तो दीज आर द कंटेंट फॉर द डे. लाइक फर्स्टली वी विल सी कि क्या होता है वायरशार्क. विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस इट टू आवर सेल्स एंड देन विल सी दैट वट इज द बेनिफिट ऑफ पैकेट कैप्चर. एंड आफ्टर दैट वी विल सी हाउ वी कैन डू सम एनालिसिस अबाउट द TCP/IP पैकेट्स एंड देन वायरशार्क फिल्टर्स. और मैं आप लोगों को कुछ ऑसम हैक्स भी बताऊंगा, तो आप डेफिनेटली फ्लेक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हो. And after that we will see some CLI options as well. So let's move ahead. Here we have, so what is Wireshark? So as one of us already mentioned, that Wireshark is a very popular network packet analyzer. So it's basically it is not one of the popular, it is the most popular network protocol analyzer. एंड इसको यूज़ करके हम माइक्रो और मैक्रो एनालिसिस कर सकते हैं. मतलब वी कैन डेल्व इनटू द डीपर इंटीग्रिटीज ऑफ दैट, and we can also just take a bigger picture of it. And it was released in 1998 by Gerald Combs, and at that time it was known as Ethereal, but in 2006 there was some issues with the trademark, so then they had to change the name and they got this cool name which is Wireshark. And it's an open source and free software, and it is available in GitHub. This is their GitHub repository, and it's a cross platform application, so you can use it in your Windows, Linux and Mac OS. Other than that, it can be extended with C or Lua languages, and it also supports some plugins, and you can actually use it, extend the functionality of Wireshark, which the professionals always do. And Wireshark is something which is not always taught in college, but whenever you come out of college, go to the industry, and you are into networking or in the field of IT, then you will definitely need Wireshark. Especially network engineers, they need it always. So here we have the user interface of Wireshark. I hope it is clearly visible to you all. So this is something like this is what will come when you will just open the application, and this is how it looks like when you are actually capturing some packets in it with using it. So now the question is, why do we need packet analysis? तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पैकेट होता क्या है. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि पैकेट्स होता है कि जब हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को थ्रू द इंटरनेट. At that time, we send it not as a single data unit, we divide it into smaller chunks and then we share it as packets. Because छोटा डेटा होता है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी चंडीगढ़ में जब हम
ऑफिस टाइम में निकल रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो उसमें अगर आपके पास स्कूटी है तो आप निकल सकते हो बच के, बट अगर आप एक बस में जा रहे हो तो फिर आपको ट्रैफिक में वेट करना पड़ेगा सिग्नल पे। तो दैट्स वाई वी ब्रेक द डेटा इनटू पैकेट्स, and these are some of the major need for the packet analysis. So we have to diagnose the networking issues. In that case you need packet analysis for monitoring the performance. So कभी भी हम लोग जब देखते हैं कोई वेबसाइट को हम लोग एक्सेस करने जा रहे हैं एंड देर इज सम डिलेज, सो इन दैट केस ऑल्सो वी नीड वायरशार्क, वी कैन चेक कि कितने टीसीपी के पैकेट्स आ रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, उसका टाइमिंग क्या है, कितने टाइम में रिस्पॉन्स आ रहा है। सो हम वो चीज़ यूज़ करके हम लोग परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं किसी भी वेब सर्वर का। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली सिक्योरिटी एनालिसिस, कोई भी सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो फिर हम सबसे पहले नेटवर्क पैकेट्स को कैप्चर करते हैं और देखते हैं कि कोई ऐसा पैकेट तो नहीं आ रहा जिसको हमें पता नहीं है, टीसीपी का जहाँ पे पैकेट आना चाहिए था वहाँ पे कुछ और पैकेट तो नहीं आ जा रहा जो मिलीशियस हो सकता है, जो सस्पिशियस हो सकता है। तो फॉर दैट रीजन वी नीड द वायरशार्क सॉफ्टवेयर। अदर देन दैट प्रोटोकॉल एनालिसिस इज देयर। तो कभी कभी वॉइस ओवर आईपी में कॉल क्वालिटी का जो इशू होता है उसको भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं वायरशार्क पे। Other than that, forensics are also there. So it's also a very important aspect of using Wireshark. So now let's come to activity. तो बेसिकली यहाँ पे जो भी लिंक्स है, ये सारे लिंक्स हैं। आफ्टर दिस मीटअप वी विल शेयर यू द ऑल द रिसोर्सेज। तो आप इस पीपीटी को ओपन कर सकते हो एंड देयर यू विल हैव द लिंक्स फॉर द पीकैप फाइल्स। तो आप अपने वायरशैक सॉफ्टवेयर में ओपन करके आप चेक कर सकते हो कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। एंड ऑल्सो वी हैव द वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एज वेल, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। नाउ आई विल जस्ट शो यू वन डेमोन्स्ट्रेशन फॉर वायरशैक। So in this HTTP analysis, what we are going to do is that we are going to open a HTTP website. So it's a local server which we have already created. And now what we are going to do is that we are going to check that when we are opening that website, what will happen inside Wireshark, how we can see the packets traveling from the server to the client end. So let's play it. So this is how the software opens. और यहाँ पे हम लोग एक नेटवर्क का चेक कर नेटवर्क का इंटरफेस सिलेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट we come here, there are so many interfaces like Wi-Fi is there, local area connection is there, Ethernet 4 is there. So these are all the interfaces through which your PC actually sends and receives traffic. So here we have selected one, that is Ethernet 4. चलो अभी आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर एंड अभी सबसे पहले हमें एक वेबसाइट खोलना पड़ेगा। सो अगेन इट्स बेसिकली तो इट वॉज बेसिकली एच टी टी पी वेबसाइट बिकॉज एच टी टी पी सिक्योर होता है तो उसके पैकेट्स में हमें बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। दिस इज हाउ द पैकेट्स लुक लाइक। So here you can see there are so many HTTP packets, and here I have done something we will discuss later, that how we can actually filter out and see only the HTTP packets. So here we have the HTTP packets. अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये हमारा ना सर्वर था और ये जो सोर्स है ये एक्चुअली हमारे मशीन का आईपी एड्रेस है जिससे हम लोग ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन द HTTP protocol some data packets are being sent. Let's see what else we can see. So here also you can, here we have some code here. So basically this is from the server side that is coming. So here you can see it's an HTML code if you focus there. So this is the HTML code that we can actually see through Wireshark. We have just opened the browser, right? We have just opened that website. We have not even checked the code from any other means. We don't have the code, but still we can see that using Wireshark. So that's the power of Wireshark, and that's how we can actually analyze the HTTP protocol using it. And once we are done with this, हम इस चीज़ को पूरी चीज़ को सेव भी कर सकते हैं. That's what I am doing there. I am saving it as whatever name I want. I have named it as HTTP capture, and now we have actually saved it inside our device. तो अभी हम इस चीज़ को दोबारा भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, and that's how I have created that pcap file and I have put that on GitHub, and this video will be available on YouTube, so you can follow this video and you can use that pcap file to actually do it yourselves, totally hands-on. Let's come back to our slides. So here we have two different parts. So the first part is the local pcap files that were opened recently, and the second part is the network interfaces that I've already discussed about. So if you do these, you will capture the live traffic that is coming to your device, and from these you can actually get the pcap files that you have saved already.
And to open any other file that is not actually recently opened, you can just go to here, you can click on this icon, then you will get a list of the pcap files, or you can browse it from some other directories as well, and then you can open it. ओके, सो टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में किसी ने सुना है, लाइक टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल? एनीवन? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो या फिर आप चैट में भेज सकते हो. ओके, नो प्रॉब्लम. तो टीसीपी आई, हेलो, ओके ओके, कोई बात नहीं. तो टीसीपी आईपी मॉडल इज बेसिकली, इट डिवाइड्स द नेटवर्किंग मॉडल इनटू 4 डिफरेंट लेयर्स. तो इससे क्या होता है, जब आप डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप सेंड कर रहे हो, तो वो डेटा एज इट इज़ तो नहीं जा सकता. तो उस डेटा को हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं, उसी चीज़ को डिफाइन करते हैं हम लोग टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर. तो बेसिकली देर आर 4 layers. द फर्स्ट वन इज द एप्लीकेशन लेयर, वेयर द डेटा कम्स इन. आफ्टर द डेटा कम्स इन, इट गोज टू द ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर में आके आपका टीसीपी और यूडीपी का हेडर लगता है. व्हाट इज टीसीपी और यूडीपी? दीज आर द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. तो इसका हेडर लगता है डेटा के साथ. उसके बाद वो आता है नेटवर्क लेयर में. वंस इट कम्स टू द नेटवर्क लेयर, टीसीपी यूडीपी हेडर और डेटा तो है, के ऊपर लगता है आईपी का हेडर, सोर्स आईपी एड्रेस, एंड द रिसीवर्स आईपी एड्रेस इज ऑल्सो एडेड देयर. आफ्टर दैट ये पूरा पैकेट जो आता है, ये आता है फिजिकल लेयर पे आपके पास. फिजिकल लेयर पे आके क्या होता है, जो आपका इथरनेट का एड्रेस होता है या फिर मैक एड्रेस जो, एंड इट गोज बैक टू द फिजिकल लेयर. एंड वो लगने के बाद द डेटा, द होल थिंग converted into zeros and ones, because that's how the data will be traveling through the cable. And then it will receive the next device, the physical layer, and धीरे धीरे the packet will start opening up, and at finally the application layer, the data will reach to the receiver's device. And here there is an important thing, the checksum is also added in this final layer, which is actually for maintaining the data integrity. कि डेटा जो आप भेज रहे हो अपने डिवाइस से, तो जो रिसीवर है उसको भी वो सेम डेटा मिल रहा है, बीच में से किसी ने कुछ चेंज नहीं करती. ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे अलग अलग लेयर्स होते हैं एप्लीकेशन लेयर पे, डेटा पैकेट कैसे दिखता है, एज वी हैव सीन दैट फ्रॉम आवर वायर शार्क. तो जैसे कि HTTP रिस्पॉन्स का एक पैकेट जा रहा है, में जो हमारा स्टेटस कोड है दैट इज़ 200, दैट एवरीथिंग इज़ ओके, देयर इज़ नो एरर. एंड उसके अलावा काफ़ी सारे डिटेल्स यहाँ पे हमें दिखता है. इनफैक्ट द एप्लीकेशन लेयर, एज आई वाज टॉकिंग, दैट डेटा कैन बी, data is seen as it is. So here we can see the HTML code also of the web page that we were browsing. So in the next layer we have the transport layer, and here the TCP port, the source port and the destination port, we can see the source port and the destination port. After that we have the acknowledgement numbers, we have some of the flags. So if you dive deep into the TCP protocol, then you will get to understand this better. But all the things that have been taught in the networking syllabus of our colleges, you can actually see those very easily from Wireshark. You can actually practically understand all those things. Next we will move to the next network layer. तो network layer में आके हमें IP addresses मिलते हैं. Source IP address and destination IP address हमारे को मिलता है. After that we have the time to live, the TTL value is also here, and we have the header checksum. So checksum again use होता है कि data की integrity बनी रहे, that whatever data is being sent from the sender to the receiver, it is not tampered in between. And after that finally we have the physical layer, where we get the source MAC address and the destination MAC address. So MAC address is actually the physical address of the network interface card that you have inside your machine, and it is unique worldwide. So now the question was that can we show the OSI model in Wireshark? तो सिंस आप लोगों को उतना आइडिया नहीं है TCP/IP मॉडल के लिए, सो बेसिकली OSI मॉडल TCP/IP से भी थोड़ा पुराना मॉडल है, एंड इट एक्चुअली is a theoretical model. So the answer is that it cannot be shown using Wireshark, because we will see that how the OSI model actually maps into the TCP/IP model. तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 layers है, application layer, presentation layer and session layer. So the 3 layers is actually mapped into the application layer of the TCP/IP model.
Next, transport layer maps straight into the transport layer, and network layer maps into the network layer. After that, we have the data link layer and physical layer, which maps inside the physical layer of TCP/IP model. So next time, if someone asks you this question, you can easily answer that no, OSI model is a theoretical model. It just maps into the TCP/IP model, and TCP/IP model worldwide use hota hai, and it's not something that's gonna change in near future or based on regions. So this was about the TCP/IP model. Now we will talk about Wireshark filters. So आप सबने फिल्टर्स तो यूज़ किया होगा कहीं ना कहीं, जैसे आप अगर शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हो तो फिर वहाँ पे भी आप फिल्टर करते हो, राइट, कि आपको क्या चाहिए, कौन सा फ़ोन चाहिए. तो वायर शार्क में भी फिल्टर इज़ द सेम थिंग. इट इज़ जस्ट अ क्राइटेरिया टू विच इज़ अप्लाइड टू कैप्चर द पैकेट डेटा फॉर टारगेटिंग अ स्पेसिफिक नेटवर्क ट्रैफिक. So we will understand this in much detail. So before that, what is the purpose of it? So the purpose is that we can efficiently analyze our data or the network that we are trying to do, because when you are seeing the data through the Wireshark software, you actually get a lot of packets. कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपको ना बहुत ज़्यादा thousands of packets दिखेंगे, but all those are not necessary. For that we use the filters. So there are two types of filters. One is the display filters and the second is the capture filters. So these are nothing that but in the display filters, whenever you are seeing the data at that time, what you want to display to yourself. So for that we use the display filters. But for capture filters, we apply them while we are capturing the data. तो मतलब कैप्चर ही नहीं होंगे वो फिल्टर्स, वो पैकेट्स जो आप फिल्टर आउट कर दोगे. So that's the basic difference. So now coming to the first type of filter. So this is the protocol based filter. So there are multiple protocols, right? So HTTP is a protocol, TCP is also a protocol. So if you want to see only a specific type of protocol, कि मतलब मुझे तो बस HTTP के ट्रैफिक से ही मतलब है, जैसे कि हम जब HTTP पैकेट एनालिसिस कर रहे थे, हमने देखा था कि मैंने एक HTTP का कर रखा था. तो उस केस के लिए हमने HTTP प्रोटोकॉल का फिल्टर लगा दिया. अब उस प्रोटोकॉल के जितने भी पैकेट्स होंगे वो सारे हमें यहाँ पे इजीली विजिबल हो जाएंगे. तो नेक्स्ट इज फिल्टर बाय आईपी एड्रेस. अभी हम जब नेटवर्क पैकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो मेन टारगेट रहता है हमारा, काफ़ी टाइम हम लोग एक पर्टिकुलर डिवाइस को देख रहे होते हैं कि उस डिवाइस से आ रहा है क्या, या फिर उस डिवाइस को कौन से पैकेट्स जा रहे हैं. तो इन दैट केस वी यूज़ द आईपी. तो IP.src को अगर आप यूज़ करते हो, तो इन दैट केस जो भी पैकेट्स उस पर्टिकुलर आईपी से आ रहा होगा, बस वही पैकेट दिखेगा. द सेम वे we have IP.destination or IP.dst, then double equals to, and then you will put in the IP address of the destination device that you are targeting. तो इस केस में क्या होगा, जो भी पैकेट्स फॉर दिस केस 192.168.56.1 को जाएगा, चाहे वो कहीं से भी जा रहा हो, इस केस में तो एक ही डिवाइस से जा रहा है, बट इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो मल्टीपल डिवाइस का भी आप देख सकते हो. तो इन दैट केस यू विल यूज दिस. एंड हियर यू कैन सी दैट प्रोटोकॉल्स मैटर नहीं करते. यहाँ पे टीसीपी के भी प्रोटोकॉल्स हैं, एचटीटीपी के भी प्रोटोकॉल्स के भी पैकेट्स हैं, बट स्टिल बिकॉज द फिल्टर इज ऑन द आईपी डेस्टिनेशन, दिस फील्ड विल बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट. आफ्टर दैट you can keep the ip.addr double equals to then the IP address. So in this case, if this IP address is found anywhere in the packet, whether it is the source or it is the destination, आप उसको फिल्टर कर सकते हो. लाइक यहाँ पे कुछ सोर्स में भी है, कुछ डेस्टिनेशन में भी है. तो लाइक दिस वे इट्स ऑल्सो वेरी एफिशिएंट वे ऑफ फिल्टरिंग आउट. जब आपको पता नहीं कि आपको सोर्स का ही आईपी मिला है या फिर आपको डेस्टिनेशन का आईपी मिला है, आप ऐसे भी कर सकते हो. तो नेक्स्ट इज फिल्टरिंग बाय मैक एड्रेस. तो मैक एड्रेस को भी हम फिल्टर कर सकते हैं जस्ट द सेम वे वी डिड फॉर द आईपी एड्रेस. तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस तो नहीं पता डिवाइस का, बट यू हैव द मैक एड्रेस, सो इन दैट केस यू कैन डू दैट. The next we have filter by frame content. So sometimes it happens that you don't know even the IP address, MAC address, anything, but you know that when something is sent, like each packet or data is sent, the whole packet, you call it as a frame. तो आपको पता है कि फ्रेम में कुछ तो ऐसा है कि there is a PNG and we will actually use it later. Like when we will actually, I will tell you later as well. So this PNG, so at that time what you do is that you just write frame contains, and then you under the quotes you write what you think that it contains. And see, we have so many packets. Just we have used a very basic filter here. Like it's not that it is showing that any PNG file or something. It can be a simple text also. Like you can just write get also. Even then it will be filtering.
Okay. So now we can also save the filters by our custom names. Like you have some filter like here in this case that we have Ethernet address is this ethernet.addr equals to. So you can save the filters in this format as well. And it's very simple in your Wireshark. You can just go and click on this corner icon and then this menu will pop up. So here you need to just type, you need to select manage display filters, and after that this particular menu will open, and these are all the filters that are currently there, and you can just click on this plus to add any other filter as per your wish. You can just simply use these things and then your custom filter will be created. So that's actually a very nice thing, that when you are working more and more with Wireshark, these are the things that will actually give you an edge above your other peers. So now we are going to go for another demo which will be about TCP stream reconstruction. So let's check it out. So here we have TCP stream reconstruction. So let's see what happens. So basically we are going to again open that same HTTP website that we have hosted in our server, and we are going to browse that website. So the first few steps remain same. We are going to open and choose a network interface here. We have chosen Ethernet 4, and now we are going to open that particular website. It's actually locally hosted, and as you can see there are some images, there are some text, and here we have actually stopped the packet capture. That's because we wanted to capture only the necessary packets here, right? So that's how we did it, and now we can just continue on what we did. So you can see there are so many TCP packets, and as I've already mentioned that data को हम लोग packets में बांटते हैं and then हम send करते हैं उस चीज। तो इसीलिए एक simple अगर HTML पेज को भी लोड करना है ना, there are multiple packets. In fact, there are hundreds and thousands of packets that are sent. तो अभी जो ये पैकेट्स हैं इनको अगर आप रीड करने जाओगे ना, हियर वी विल बी एबल टू रीड द डेटा फ्रॉम देयर, बट जो रीड करने जाओगे वो प्रॉपरली रीडेबल नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्लाइंट सर्वर को कब क्या पूछ रहा है और क्लाइंट को रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। लाइक यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा पैकेट्स हैं एंड सबके लेंथ अलग अलग है, एक 1514 का है। तो अभी हम उन चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पे, एंड आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो, आप HTML का कोड भी आप निकाल सकते हो अगर वो HTML पैक अगर वो HTTP का पैकेट है। Like here you can see there is the HTTP code here, but it's not clearly readable. So we can actually reconstruct the whole stream of conversation between the client and the server, and we'll see how we can do that. Here are so many packets. You just select one packet and then you go to follow and then you click on TCP stream. Once you do that, you get a pop-up like this. So when the pop-up is open, you actually see the get request, the response of the server, and the HTML code. Like I can pause it here. So you can see first the request was there, then the server accepted it, then the server, also you get the server details here. It's a simple Python server, even the Python version is visible here. They're all very important information when you are working with data, or where you are working in the cybersecurity field. Now if we play it again, you can see the whole code of the HTML page is visible to you, and for that you can just simply sniff the packets. Now we can also save this to a file like a .txt file or something, and saved in your. These are the very important data. Like for now we are doing a HTTP request to a web page, but later we might do some more important stuff, right? तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा important एक part हो जाता है TCP stream reconstruct, and this is nothing, we are just saving it in our files that we can reuse the packet capture, and we have uploaded this packet capture file and this video on YouTube as well, and the packet capture file is on our GitHub repository, so you can go there and download करो आप इसको खुद ट्राई करोगे ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। Moving on, we come, the next step is to extracting resources from the traffic.
तो अभी हमने जो वेबसाइट देखा था, मैं क्या था, में काफ़ी सारे इमेजेस हमें दिखे थे, है ना? ऑल दोस आर ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली, दोज आर सेंट बाय द सर्वर टू द क्लाइंट। तो अभी हम अगर हमें उसको रिकंस्ट्रक्ट, उस एक्सपोर्ट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? लेट्स चेक दैट आउट। लेट्स प्ले द वीडियो। अभी द स्टेप्स आर क्लियर, राइट? अब तक तो आप लोग बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे कि ऐसे इंटरफेस खुलता है, आपको एक सिंपल सा एक आपको एक नेटवर्क इंटरफेस चूज करना है एंड देन यू आर रेडी टू गो। अभी हम सेम अपने HTTP सर्वर से जो हमने वेबसाइट सर्व कराया था, उस वेबसाइट को हम फिर से ओपन करेंगे। यार, जब हमने ओपन कर लिया तो यहाँ पे आप देख रहे हो देयर आर मल्टीपल इमेजेस, राइट? एंड एक्चुअली ये इमेजेस हम बहुत इजीली वायर शार्क से ना कैप्चर कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अभी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा पैकेट्स आ रही है, बट यहाँ पे आपको एक्चुअली इमेज तो कहीं नहीं दिखेगा कि इमेज अगर सेंड हो भी रहा होगा, वो पैकेट्स में बट रहा है, अगेन मैंने बहुत बार बोल दिया, और फिर वो बिट्स में जा रहा है, तो हम बिट्स बाई बिट्स उसको पकड़ के तो कुछ नहीं कर सकते। बट वायर शार्क इज सच अ पावरफुल टूल, ये आपके लिए उस चीज़ को कैप्चर करके दे दे। आपको बस ऊपर मेन्यू मिलता है, आपको सारे पैकेट्स ही है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डेटा तो मिलेगा, बिट्स बिट्स, बट आपको ये कुछ आप निकाल नहीं पाओगे, आप वो इमेज को नहीं देख पाओगे, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि। बट हियर इफ यू गो देयर, आई जस्ट पॉज इट हियर। अभी आप अगर इधर मेन्यू में जाते हो ना, फाइल्स के बाद आपको ऑप्शंस आता है एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स का। वहाँ पे आप एक्सपोर्ट करो, देन आप करोगे HTTP, एंड उसके बाद ना एक्चुअल में मैजिक होता है। तो हियर यू कैन सी, पे आपको 3 इमेजेस मिल गए। 3 इमेजेस तो मिले, फेविकॉन भी मिल गया उस वेबसाइट का, और आप उसको इजीली प्रीव्यू कर सकते हो अपने ब्राउजर पे, अपने सिस्टम पे। एंड चलो, प्रीव्यू तो फिर भी ठीक था, प्रीव्यू के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हो। तो दैट्स हाउ इजी इट इज़। देखो, ये इमेजेस तो हमने देख लिए, बट अब हम इसको सेव भी कर सकते हैं। सारे सेव करना है कर दो, कोई एक दो करना है तो हम वो भी सेव कर। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। हमने सेव भी कर लिया। चलो, सेव कर लिया तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक सही से सेव हुआ या नहीं हुआ वो चीज़। आगे डेस्कटॉप पे, एंड रही हमारी पिक। तो अब देख रहे हो कि वेबसाइट पे थी। मैंने वेबसाइट इस केस में तो अपने डिवाइस पे खोला है, बट अगर मैं इसको किसी और नेटवर्किंग डिवाइस पे लगा रहा हूँ वायरशार्क को, और वहाँ पे स्निप कर रहा हूँ, तो ज़रूरत नहीं है इसको खोलने की। इवन आप सोच, तो ये जो pkf फाइल है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ अभी गिटहब पे, आप उसको ओपन करते हो अपने वायरशार्क सॉफ्टवेयर पे, अपने सिस्टम्स पे, तो आप भी इस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हो। इट्स हाउ पावरफुल, इट शोज हाउ पावरफुल वायरशार्क इज। तो आगे बढ़ते हैं। दैट वाज हाउ यू वर extracting sources from the traffic. In this case, since I had only one system, so I just opened the browser and I did the traffic capture on my same device, but you can do it on some other router as well, and then you can actually get something out of it. So now I will teach you some of the hacks that can be actually very useful. So the first hack will be using a protocol hierarchy. So now the scenario is like you have got a packet capture file and it's a huge packet capture file. हज़ारों आपके पास पैकेट्स हैं, आपको उसमें से कुछ मीनिंग निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए ना कि पैकेट्स आ किस टाइप के रहे हैं। अभी कोई अटैक हुआ है किसी के ऊपर, कैसे पैकेट्स आए हैं, क्या है। जैसे बहुत सारे अटैक्स होते हैं, डीडोस अटैक्स होते हैं, केस में जो है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के पैकेट्स भेजे जाते हैं। तो आप उसको भी थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं ना कि अभी पर वो अटैक अगर हुआ टाइप के पैकेट से हुआ, तो आप उस टाइप से भी आप कुछ नेचर उसका फिगर आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे? जस्ट ओपन वायर शार्क एंड हियर यू हैव द स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन। You go to statistics and then you click on protocol hierarchy. Once you click on protocol hierarchy, you will actually get a detailed report of what are the protocols, what are the packets, what are the percentage, and you will get that by the name of the protocol. Like here you have Ethernet, then IP, UDP, like SSDP, every protocol and what percentage they are there. जैसे कि अभी आप देखो, इस वाले जो पैकेट कैप्चर था HTTP वाले का, वहाँ पे मेरा क्या आया, TCP के 94.3% पैकेट्स थे। So it actually gives you a good idea about what kind of analysis, when you are doing an analysis, it can actually give a great idea about what kind of packets you are dealing with. तो अभी जो नेक्स्ट हैक है, वो है कि आप अगर नियर बाई डिवाइसेस को आप चेक कर सकते हो जो आपके वाईफाई नेटवर्क पे है। तो द इंटरेस्टिंग थिंग दैट जब आप वाईफाई पे कनेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे आसपास के डिवाइसेस का भी लिस्ट है ना, उसके IP के एड्रेस वगैरह आप निकाल सकते हो।
So let's see how we can do that. करना, फिर Wireshark open किया किसी पैकेट कैप्चर का, then you go to the wireless setting. After that you click on WLAN traffic, and then you get something like this. Here also you get that what are the percentage of packets that are actually coming in and out of the device. And these are all the MAC addresses of the devices. That's a very good information that you can have about the device. You can actually use it to your benefit as well. So now coming to our third hack, we can actually check the connected devices also same way like we did for the Wi-Fi devices. So again, come to wireless, आप click करोगे Bluetooth devices, and then you can get the list. Here in this packet that I got, I only had this one device, but in some case you can get multiple when they are connected. So the fourth hack is typeless and drag mode. अभी आप जब वायरशार्क पे हो, आपके पास मान लो ये सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, एंड आप भूल गए कि कौन सा फिल्टर क्या लगता है, विच हैपन्स विद मी अ लॉट। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक जगह पे क्लिक करो, आप उसको ड्रैग करके यहाँ ले जाओ। आई हैव ट्राइड टू शो हियर। आप उसको ड्रैग करके वहाँ डालोगे, आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि क्या हो रहा है, सोर्स आईपी एड्रेस के साथ कर रहा है वो। तो ऐसे आप फिल्टर्स को अप्लाई कर, इज अगेन अ ग्रेट वे टू, एंड इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम व्हेन यू आर डूइंग इंटेंस टास्क। दीज थिंग्स विल एक्चुअली मैटर अ लॉट। आप किसी केव वगैरह में गए हो, वहाँ पे अगर आप वायरशार्क यूज़ कर रहे हो फ्लैग को ढूंढने के लिए, आर द थिंग्स दैट कैन एक्चुअली वर्क अ लॉट। नेक्स्ट इज दैट वी कैन ऑल्सो कंबाइन सम फिल्टर्स। भी एक एक फिल्टर करके तो लगा लिया, बट क्या होता है अगर हमें जब रियल वर्ल्ड में हम जा रहे हैं कहीं पे, हम कोई सी वगैरह पे है या हम कोई रियल वर्ल्ड पैकेट कैप्चर कर रहे हैं, वहाँ पे एक फिल्टर से काम नहीं बनेगा। तो इसमें क्या हुआ, पहला फिल्टर तो मैंने चलो लगा लिया यहाँ, पहला फिल्टर लग गया, उसके बाद हमें जाना है, हाँ, अगला फिल्टर मिल, अगला फिल्टर के लिए हमें क्या करना, हमें ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, लाइक ये तो एक्चुअली वी हैव रिटन इट, might appear it like that way, but what you can do is that whenever you have selected one filter and then you try to apply the next filter, Wireshark actually gives you the option that whether you want to use the next filter with an AND operation or operation, logical operations. Like for this case, a filter something like if frame.length equals to 217 and IP.protocol equals to 17. If both the conditions match, in that case will be. So it's also a very good way to understand and actually analyze packet. चलो ये सब तो हो गया, हमने वायरशार्क बहुत देख लिया। वायरशार्क एक बहुत बढ़िया GUI एप्लीकेशन है, बट हम में से काफ़ी सारे लोग CLI के साथ काम करते हैं, लिनक्स में काम करते हैं, तो कैन वी हैव समथिंग इन CLI एज वेल? तो उनके लिए वी हैव टी शार्क। टी शार्क क्या होता है, वायरशार्क का ही प्रोडक्ट है, मतलब वायरशार्क कंपनी का ही प्रोडक्ट है। इट्स द CLI वर्जन ऑफ वायरशार्क, इट ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल। just need to install it and you can actually check the documentation out from this. It's the official link of Wireshark Docs, very detailed, तो आप आराम से जाके पढ़ सकते हो इस चीज़। एंड इसके अलावा आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट टाइप इन टी शार्क एंड योर पैकेट्स आर गेटिंग कैप्चर्ड। दैट्स ऑल्सो अ कूल वे टू डू, चेक इट इन अ डिटेल्ड वे। शार्क लिखा, ने अपना कैप्चर कर लिया, एंड देन इट जस्ट, बट कैन वी डू समथिंग बेटर? तो डू समथिंग बेटर, वी हैव TCP dump. TCP dump is also similar to T-Sharp. You can always go to this their official documentation. We have linked that in our people. तो आप यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर अ लॉट। बट अभी तक तो ठीक था कि GUI में GUI हो रहा है, CLI में CLI हो रहा है, बट इफ़ यू वांट कि आपको CLI में GUI चाहिए, then in that case what can we do? So in that case we have something called term shark, and you can see this is not inside a GUI, it's working purely inside a CLI, and it will actually give you a good vibe of the GUI thing. You can also check this out as well. We have also attached the documentation and the GitHub repository, official GitHub repository of term sharks. You can definitely go there and you can read about it. So
यू वांट टू इंस्टॉल इट ऑन योर लिनक्स मशीन, अगर कोई लिनक्स मशीन यूज़ कर रहा है तो उसके लिए भी हमने गाइडलाइंस दे रखी है स्टेप्स, बिकॉज विंडोज़ के लिए तो बहुत ईजी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हो, आपको बस डाउनलोड करना है, जैसे आप कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, यू कैन इंस्टॉल इट इन द सेम वे। बट अगर कोई को लिनक्स में इंस्टॉल करना चाहता है, देन यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल इट steps. First, you have to update the device packages, apt-get update command. After that, you just have to run this sudo apt install wireshark command, and then you will get something like this. Uh, it will be a configuration message, and it will actually, to read it well, then what it means is that it is asking that whether you want to give the super user access to Wireshark or not. Because when you are actually capturing packets with Wireshark, it's a very highly sensitive thing. Linux is a very secured operating system. It asks you whether you want to give it that access or not. And if you give it a yes, you can, it's good, well and good. Otherwise, even if you give no, then you have to open Wireshark with the sudo command. And then you can, after doing that, you have to add your current user to the Wireshark group, so that he or that user has the access to Wireshark without the sudo command. So about Wireshark, guys, I have tried to explain you about the main points on Wireshark that we actually use a lot, and I've also tried to explain you how you can install it on your Linux system, and we can also install it on Windows system as well. So if you have any questions, any queries about Wireshark you want to install, then you can feel free to ask. वी हैव जस्ट सीन कि वायरशार्क कितना यूज़फुल है। हम पैकेट ट्रेस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं क्या आ रहा है, क्या नेटवर्क है। सो नाउ वी विल सी सम साइबर न्यूज़, सम साइबर अटैक न्यूज़। हम सब ने न्यूज़ बहुत सुनी है, बट क्या अटैक हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये न्यूज़ चैनल पे तो नहीं आता है। तो लेट्स सी। Yeah, I'm a software engineer and researcher at CyberForge Academy. I am a final year student at Lovely Professional University. Other than this, I have interned with Web3verse Academy and Namecard, and yeah, I am interested in art and craft. So today we will see two big incidents, or you can say cyber attack incidents, which has just happened. This one is last year incident and this one is last to last year incident. तो ये बहुत बड़े इंसिडेंट है साइबर फील्ड में। सबसे पहला मिडनाइट ब्लिज़ार्ड इंसिडेंट। तो दिस वाज द बिगेस्ट डेटा सिक्योरिटी ब्रीच एट माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट से डेटा गया है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये अटैक किया था मिडनाइट ब्लिज़ार्ड ने। ये ग्रुप है रशियन हैकर्स का जो कि लिंक करता है एसवीआर से। अब एसवीआर क्या है? एसवीआर एक फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है, रशियन फेडरेशन। वी विल सी नाउ। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था? ऑलमोस्ट 40 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी अलग अलग सेक्टर्स की जो इम्पैक्ट हुई थी इससे। इससे क्या पता चलता है कि जो अटैकर्स थे ना, उनका स्पाई का ऑब्जेक्टिव था। उनको गवर्नमेंट को, एनजीओस को, आईटी सर्विस को स्पाई करना था कि क्या चल रहा है। इसमें क्या हुआ था कि जो मेल थे ना, कॉर्पोरेटिव मेल्स या एम्प्लॉयज़ के मेल, वो ब्रीच हुए थे। वो था डेटा मेल। अभी कैसे हुआ था, ये पूरा डायग्राम है उसका। जस्ट अ मिनट गाइस। या तो ये था हैकर। अब इसने क्या किया, इसने पासवर्ड स्प्रे टेक्निक यूज़ की। ये एक टेक्निक है हैक करने की। अब हम लोग सब सेम पासवर्ड यूज़ करते हैं अलग अलग अकाउंट्स पे। अब बहुत सारे ऐसे यूज़र्स थे जिनका सेम पासवर्ड था। तो इस अटैकर ने क्या किया, पासवर्ड स्प्रे टेक्निक यूज़ की और कुछ लेगेसी टेस्ट अकाउंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट के टेस्ट इन्वायरमेंट में थे, उनको हैक कर लिया। अब जो अटैकर था वो इस इन्वायरमेंट में आ चुका है। तो ये जो थे ना, ये अकाउंट्स, इनका जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन था ये नहीं था, और ये बहुत वीक पासवर्ड यूज़ कर रहे थे, इसलिए इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अटैकर ने। अब अटैकर है टेस्ट इन्वायरमेंट में। अब क्या करेगा अटैकर? धीरे धीरे उसने क्या किया, हाईजैक कर लिया टेस्ट ओऑथ एप्लीकेशन। अब ये जो ओऑथ एप्लीकेशंस होती है, इनके पास बहुत हाई प्रिविलेजेस होते हैं, एक्सेस होता है ये कॉर्पोरेटिव इन्वायरमेंट का। और कॉर्पोरेटिव इन्वायरमेंट वो है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का मोस्टली डेटा वगैरह है, ये हाईली सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, तो अब अटैकर क्या किया, अटैकर टेस्ट इन्वायरमेंट में आ चुका है। अब उसके पास इसका एक्सेस है। अब वो चाहता तो वो आगे भी जा सकता था, लेकिन ये वो गुस्सा कहाँ से था, इधर से के पास कुछ अकाउंट्स का एक्सेस था।
अब अगर ये माइक्रोसॉफ्ट को पता चल गया और ये हट गया तो अटैकर तो नहीं जा पाएगा ना आगे। तो उसने क्या किया, उसने एक अपना OAuth एप्लीकेशन क्रिएट किया ताकि उसके पास टेस्ट इन्वायरमेंट का एक्सेस रह पाए। जैसे ये क्रिएट हो गया, उसने फुल एक्सेस दे दी एक यूज़र को और उसने अपना ही एक सर्विस प्रिंसिपल बना लिया कॉर्पोरेटिव इन्वायरमेंट में। अब ये जो OAuth एप्लीकेशंस होती है ना, इनके पास बहुत हाई प्रिविलेजेस होती है, हाई एक्सेस होती है कॉर्पोरेटिव इन्वायरमेंट की। अब जैसे ही ये अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, उन्होंने यहाँ पे सर्विस प्रिंसिपल बनाया, अपना एक अकाउंट बनाया जो कि ऑलमोस्ट एडमिन के बराबर था। अब एडमिन का मतलब कि पूरा एक्सेस है उसके पास, ठीक है। तो उसके यहाँ आ चुका है, अब वो कहाँ पे है, कॉर्पोरेटिव इन्वायरमेंट। इसने क्या किया, इसको पूरा प्रिविलेजेस दे दिया, पूरी एक्सेस कंट्रोल दे दी। अब जैसे ये हो चुका था तो अब इसने इसको ऑथराइज कर दिया और सारे एम्प्लॉयज़ का जो मेल बॉक्स था, ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट के 365 के अंदर जितने भी मेल्स थे, कॉर्पोरेटिव मेल्स, एम्प्लॉयज़ के मेल्स, यूजर्स के मेल, सब ब्रीच हो चुके थे। तो ऐसे ये मिडनाइट ब्लिज़ार्ड वाला जो था इंसिडेंट, ये हुआ था। तो ये अभी तक क्लियर नहीं है कि इन लोगों ने यहाँ बनाया था या यहाँ बनाया था, बट मोस्टली टेस्ट इन्वायरमेंट में ये जो था OAuth एप्लीकेशन, ये बनाया गया था, इतना रिवील हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, तो अभी हमने देखा कि ये जो अटैक था, ये किया था मिडनाइट ब्लिज़ार्ड, जिनको नोबिलियन बोलते हैं, ये हैकर्स का ग्रुप का नाम है। तो APT29 ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है साइबर हैकर्स का, जो कि रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस को एट्रीब्यूट करता है। अब इसमें देखो, ये नाम है नोबिलियन, अब यही हैकर्स ने मिडनाइट ब्लिज़ार्ड का किया था। तो ये समहाउ सिमिलर है या सेम है, बिकॉज ये सेम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जो ये APT29 यूज़ करते थे टेक्निक हैकिंग के लिए, सिमिलर और सेम टेक्निक्स ये भी यूज़ करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी attacks.mitre.org पे अवेलेबल है। ये जो जो टेक्निक्स यूज़ करते थे, सारी टेक्निक्स ऐसे मेंशन है टेबल्स में, कैसे होती हैं, क्या टेक्निक है, कैसे करते हैं, वो सब मेंशन है वहाँ पे। यू कैन सी कि डोमेन अकाउंट का कैसे करते हैं, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। इस साइट पे यू कैन विजिट एंड सी दिस इज अ थ्रेट ग्रुप जो कि इससे लिंक था, ये सारे उसके एसोसिएटेड ग्रुप्स थे। और क्या, तो इधर टेबल है टेक्निक्स यूज, क्या क्या टेक्निक वो लोग यूज़ करते थे, ये जो ग्रुप्स थे ये क्या टेक्निक यूज़ करते थे हैक करने के, वो सब इधर मेंशन है। तो यू कैन विजिट दिस साइट एंड सी कैसे होता था सब। ठीक है, हमने देखा कैसे टेक्निक करते थे, लेकिन क्या कर सकती थी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंड करने के लिए इनसे। माइक्रोसॉफ्ट इसको प्रिवेंट कर सकती थी ना कि वो ना वो हो। तो ये थी डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज जो कि माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करनी चाहिए थी। माइक्रोसॉफ्ट शुड हैव इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बिकॉज दिस वाज द एंट्री पॉइंट जहाँ से हैकर आए थे। अब जैसे यहाँ पे था कि ये जो अकाउंट थे इनका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ था, इसी वजह से वो एंटर कर पाए ना, तो माइक्रोसॉफ्ट को वो इनेबल करना चाहिए था। उसके बाद दे शुड हैव कंडक्टेड रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स ऑफ OAuth एप्लीकेशंस, ऑल्सो दे हैव इम्प्रूव पासवर्ड पॉलिसीज। अब पासवर्ड तो स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद दे शुड हैव इम्प्लीमेंटेड मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग एंड मैनी मोर। Now the second major incident, this was happened in 2022. The previous incident was happened in 2023. अब ये क्या था, जो सैंडवर्म था उसने पावर आउटेज कर दी थी यूक्रेन में, और ये बहुत मेजर स्केल पे हुई थी। तो इस इंसिडेंट में क्या था, ये साइबर फिजिकल अटैक था, मतलब जो हैकर था वो एक फिजिकल इन्वायरमेंट में जाके उसने अटैक किया। देखेंगे कैसे किया, क्या किया। ये जो था ये एक रशियन हैकर्स का ग्रुप था सैंडवर्म, जो कि नोवल टेक्निक्स यूज़ करते थे या फिर डिस्ट्रक्टिव मालवेयर यूज़ करते थे, जिसको हम कहते हैं OT लेवल LOTL टेक्निक। LOTL क्या होता है, लिविंग ऑफ द लैंड, मतलब कि जो टारगेट है उसके एरिया के जितने भी टूल्स होते हैं आप उनको यूज़ करके हैक करो। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जैसे कि हमें पता है कि पावर आउटेज हो गई थी यूक्रेन में, जो कि एक बड़े स्केल पे हुई थी। अब उससे क्या हुआ, बिजनेसेस
जो थे वहाँ पे वो बहुत बड़े लॉस से गुजरे क्योंकि डाउन टाइम था पावर का। उसके बाद जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने भी इनकन्वीनियंस फेस किया, सेफ्टी कंसर्न्स थे। उसके बाद जो रेप्यूटेशन थी वो तो ऑब्वियसली डाउन गई। तो सैंडवर्म जो टीम थी वो भी एट्रीब्यूटेड थी रशियन जनरल स्टाफ मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट का, GRU कहते हैं जिसको। इसके भी एसोसिएटेड ग्रुप्स थे, इलेक्ट्रम था, टेलीबॉट था, बहुत सारे। सिमिलर वे में ये जो टेक्निक यूज़ करते थे या जो भी इनके साथ एसोसिएटेड ग्रुप्स थे वो भी उस साइट पे मेंशन है, तो आप देख सकते हो। दिस वाज द साइट एंड इन अ टेबुलर फॉर्म ऑल द टेक्निक्स हाउ दे कैन बी डन, कैसे होती हैं, क्या है टेक्निक, वो सब मेंशन है वहाँ पे। अब जो पावर आउटेज वाला था इंसिडेंट वो कैसे हुआ था, तो ISO इमेज हम सब ने देखी है। हम जब VMs बनाते हैं तो हम ISO इमेज यूज़ करते हैं। अब अटैकर ने क्या किया, अब ये क्लियर नहीं है कि कैसे गया क्या था, लेकिन उसने LOTL टेक्निक यूज़ करके ये, एक सेकेंड, तो अटैकर ने क्या किया, दे यूज्ड एन ऑप्टिकल ISO इमेज। अब उन्होंने क्या किया, ये इमेज लेके इसको लॉन्च कर दिया स्कैडा सर्वर पे और उसमें उन्होंने अपना मालवेयर डाल दिया। अब जैसे ये इंस्टॉल किया यहाँ पे तो उसने RTO को इफेक्ट किया, जिसकी वजह से पावर आउटेज हुआ। RTO क्या करता है, कंट्रोल करता है पावर सप्लाई का, तो इस तरह से उन लोगों ने किया था। उसके बाद व्हाट आर द डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज दे शुड हैव यूज्ड टू प्रिवेंट दिस अटैक वाज कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नेटवर्क सेगमेंटेशन बिटवीन IT एंड OT इन्वायरमेंट। अब IT OT इन्वायरमेंट क्या होता है, IT जहाँ पे रेगुलर ऑफिस वर्क होता है, OT इन्वायरमेंट जो कि ज़्यादा ऑपरेशनल वर्क होता है जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है, तो उसमें नेटवर्क सेगमेंटेशन होनी चाहिए थी। उन्होंने इन्फोर्स करने चाहिए थे स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल एंड लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, जैसे कि हर कोई ना चला जाए OT लेवल्स इन्वायरमेंट में। एंड दे शुड हैव डिप्लॉय कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग सोल्यूशन फॉर रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन। अब कुछ हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ साथ के साथ करना चाहिए था, जैसे कि इतना बड़ा लॉस ना हो। दे शुड हैव डेवलप एंड टेस्ट एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान फॉर साइबर फिजिकल अटैक्स। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान क्या होता है कि अगर कुछ हुआ, कुछ साइबर अटैक हुआ तो हम कैसे उसको फेस करें, क्या हम यूज़ करें उस टाइम पे, वो होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। दीज आर द रेफरेंस आर्टिकल, यू कैन चेक इट आउट। तो ये थे दो सबसे बड़े साइबर अटैक जो कि हुए थे लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर। आई होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। So how many of you like this? You can open your mic or write it in chat box. Okay, great. So we Hello, guys. So, we really hope that you all enjoyed and liked this online sync because we sure did. And I would request you all to please fill out the form that we have sent on the chat, and also we have mentioned the link of our Instagram profile. Please give us a follow up if you like this online sync, and we will be conducting more such events in future. Also, most importantly, we are based in Tri-City. So if you guys live here or are based in Tri-City, we will be conducting an offline event on 25th February, and we are here in Bestech Mohali. So if you are here, you are most welcome to come and join us. So thank you so much.